السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کی کتاب المقدمۃ الجزریہ کے 3 اشعار مکمل ہو گئے بالتفصیل۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسملہ اور حمدلہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا تھا، لیکن بظاہر بسملہ کے بعد حمدلہ سے پہلے اپنا جو تعارف کرایا تھا اس پہ جو اعتراض ہوا اس کا جواب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مزید 2 شعر الحمدللہ وصلی اللہ علی نبیہ ومصطفیہ محمد وآلہ وصحبہ ومقرئ القرآن مع محبہ، اس کی تفصیل آ گئی۔ اب آج جو ہے 4تھا شعر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ عبارت دیکھ لیجئے، شعر ہے: وبعد ان هذه مقدمة فيما على قارئه ان يعلمه اذ واجب عليهم محتم قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات۔ وبعد ان هذه مقدمہ اور مقدمہ یعنی دال کے کسرے کے ساتھ اور دال کے فتحے کے ساتھ دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، تفصیل آ رہی ہے۔ یہاں پہ لفظ بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا ہے۔ پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے اس شعر کا۔ اور حمد و صلات کے بعد تو یہ ایک ابتدائی رسالہ ہے ان چیزوں کے بیان میں جن کا جاننا قاری قرآن کے لیے ضروری ہے۔ اس شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے کا نام بتلایا ہے کہ اس رسالے کا نام ہے مقدمہ۔ پورا نام اس کا جو ہے آپ یہاں دیکھیے، منظومۃ المقدمہ فیما یجب علی قارئ القرآن ان یعلمہ، یعنی اس کتاب کا مکمل نام ہے المقدمہ فیما یجب علی قارئ القرآن ان یعلمہ۔ بہرحال تو اس کا ترجمہ کرایا گیا کہ ابتدائی رسالہ، اور اگر دیکھا جائے تو اس کا نام بھی تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور حمد و صلات کے بعد تو بے شک یہ مقدمہ ہے ان چیزوں کے بیان میں جن کا جاننا قاری قرآن کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال مصنف نے اس میں اپنے اس کتاب کا نام ذکر کیا ہے اور اس کتاب کے نام کو بتلایا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں بتلایا ہے کہ یہ کتاب کس چیز کے لیے ہے، کن چیزوں کے بیان میں ہے، یہ بتلایا ہے۔ اب یہاں جو ہے لفظ بعد ہے، بعدو کے متعلق جو ہے 3 چیزیں آپ کو جاننی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ بعدو کی اصل کیا ہے، دوسری چیز یہ کہ بعدو کا استعمال کب ہوتا ہے، تیسری چیز کہ بعدو کا اعراب کیسا ہوتا ہے۔ تو چلیے، بعدو کی اصل ہے اما بعدو، اور اما اصل میں مہما کلمہ شرطیہ کا مخفف ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے فا لائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر مصنف جو ہے فا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ وزن شعری، جبکہ جزری کے بعض نسخوں میں فَإِنَّ ہے وَبَعْدُ فَإِنَّ، لیکن یہاں پر وزن شعری کی وجہ سے جو ہے جن نسخوں میں نہیں تو وزن شعری کی وجہ سے فا کو حذف کر دیا گیا ہے، ورنہ وہاں پر تقدیراً ہے۔ دوسری چیز، بعدو کا استعمال کب ہوتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال یعنی بعدو کا استعمال ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ بھی جو ہے ذہن میں رہے کہ بعدو ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے،
तीसरी चीज़ आपको जाननी है कि बादू का इराब क्या है। तो उसका जवाब सुनने से पहले आप ये जान लीजिए कि बादू का इराब मुतय्यन करने के लिए उसके मुज़ाफ़ इलैह को देखना होगा, क्योंकि वो हमेशा मुज़ाफ़ होकर के इस्तेमाल होता है। तो उसके इराब की तायीन उसी वक्त होगी जबकि उसके मुज़ाफ़ इलैह की तायीन हो जावे। और मुज़ाफ़ इलैह चूँकि दो तरह का होता है, एक मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर होता है और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ होता है। फिर वो महज़ूफ़ नस्य मनसिया होता है या महज़ूफ़ मनवी होता है। तीनों सूरतें अलग अलग हैं। यानी इसका तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि बादू का एराब क्या है, तो आप उसको पहले ये कहिए कि बादू का मुज़ाफ़ इलैह कैसा है। अगर बादू का मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर है या बादू का मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ नस्य मनसिया है, तो इन दोनों सूरतों में वो जो है मुअरब होगा। और अगर जो है बादू का मुज़ाफ़ इलैह जो है महज़ूफ़ मनवी है, तो इस सूरत में वो जो है मबनी अला ज़म होगा, जैसा कि यहाँ पर है। यहाँ पर महज़ूफ़ है बादल हम्दी वस्सलाह। बहरहाल तो बादू का मुज़ाफ़ इलैह अगर महज़ूफ़ है तो महज़ूफ़ की दो सूरतें, महज़ूफ़ मनवी और महज़ूफ़ नस्य मनसिया। महज़ूफ़ मनवी होने की सूरत में ये मबनी अला ज़म होता है और महज़ूफ़ नस्य मनसिया होने की सूरत में जो है ये मुअरब होता है। इसी तरह से अगर मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर हो तब भी ये मुअरब होता है। आगे है हाज़िही मुक़द्दिमा। हाज़िही का मुशारुन इलैह क्या है? हाज़िही का मुशारुन इलैह है अल उर्जूज़तु। अल उर्जूज़तु जो रज्ज़ की जमा है, रज्ज़ रा जीम ज़ा, रज्ज़ की जमा है अल उर्जूज़तु, वो जो है उसका मुशारुन इलैह महज़ूफ़ है। यानी वबादु इन्न हाज़िहिल उर्जूज़तु मुक़द्दिमतुन। रज्ज़ किसे कहते हैं? रज्ज़ अरब जाहिलियत के उस मौज़ू कलाम को कहा जाता है जो हम काफ़िया 3 मिसरों से मुरक्कब होता था और फिल बदी बनाया जाता था और मैदान जंग वगैरह में या जुर्अत व दिलेरी के इजहार के मौके पर उसे गाया करते थे। यहाँ एक एतराज़ ये होता है कि ये रज्ज़ जो है ये शेर में दाखिल है या नहीं, क्योंकि शेर के अंदर क्या होता है कि हर बैत हम वज़न होता है और हम काफ़िया होता है, हर मिसरा नहीं। और यहाँ पर जो है अल्लामा जज़री की जो ये किताब है अल-मुक़द्दमतुल जज़रिया, इसके हर मिसरे जो है क्या नाम है मौज़ू है और जो है हम काफ़िया है, इसलिए इसमें इख्तिलाफ़ हो गया। बाद लोगों ने इसको शेर में माना है, बाद ने नहीं माना है। बहरहाल अब यहाँ हाज़िही का जो मुशारुन इलैह अल उर्जूज़ा है वो तो महज़ूफ़ है, तो हाज़िही का मुशारुन इलैह किसको बनाएंगे? अल उर्जूज़ा तो है, लेकिन वो अल उर्जूज़ा मौजूद कहाँ है? तो कह रहे हैं कि अगर जो है ये खुतबा इल्हाक़िया है, पहले भी बात आ चुकी थी, खुतबा इल्हाक़िया यानी पहले जो है किताब लिखी गई है और बाद में जो है क्या कहते हैं खुतबा उसमें शामिल किया गया है। तो खुतबा इल्हाक़िया की सूरत में हाज़िही का मुशारुन इलैह वो मज़ामीन होंगे जो किताब के अंदर लिखे हुए हैं। और अगर इसको खुतबा इब्तिदाइया मानते हैं कि नहीं, मुसन्निफ़ ने पहले खुतबा लिखा है फिर उसके बाद किताब लिखी है, तो खुतबा इब्तिदाइया की सूरत में हाज़िही का मुशारुन इलैह वह मज़ामीन होंगे जो नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह के जहन में मौजूद थे। अब यहाँ मैंने आपको बतलाया था कि मुक़द्दिमा से मुराद जो है मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसका नाम है अल-मुक़द्दिमा फ़ीमा यजिबु अला क़ारिइल क़ुरआनी अन यअलम, उसका नाम है। तो अब यहाँ कोई कह सकता है कि मुक़द्दमे से क्या मुराद है, तो आपके सामने ये बात आ चुकी कि वो किताब का नाम है। लेकिन जो मशहूर इख्तिलाफ़ है मुक़द्दमतुल इल्म मुक़द्दमतुल किताब इस तरह से कहा जाता है, तो इसको जो है यहाँ पर मुक़द्दिमा से क्या मुराद है, मुक़द्दमतुल इल्म है या मुक़द्दमतुल किताब है, एक तो जवाब आप वही दे सकते हैं, लेकिन उससे क़ता नज़र तो
آپ کہہ سکتے ہیں یہاں نہ تو مقدمۃ العلم مراد ہے اور نہ مقدمۃ الکتاب، بلکہ اس کتاب کا نام مراد ہے۔ ہاں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقدمہ جو نام مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب کیا ہے یہ غالباً اسی وجہ سے منتخب کیا ہے کہ اس کتاب میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ علم قراءات کے لیے جو ہے یہ ایک مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں، موقوف علیہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اس کا نام یہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا چلیے، اس سے قطع نظر کہ مقدمہ اس کتاب کا نام ہے، مقدمے کے متعلق تھوڑی سی بات سمجھتے ہیں کہ مقدمہ بفتح الدال ہوگا یا بے کسری دال ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کے اندر بفتح دال بھی ہے، بے کسری دال بھی ہے، تو مقدمہ بفتح الدال ہے یا بے کسری دال ہے، اور بہتر کیا ہے؟ تو مصنف شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے کسری دال ہے اور یہ اس میں فاعل ہے اور تقدیم سے بنا ہے جو تقدم کے معنی میں ہے اور وہ لازم ہے۔ علامہ بحرق ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مقدمہ بفتح الدال ہی ہے، ان کے یہاں یہ لازم آتا ہی نہیں۔ اب ان سے سوال یہ کیا گیا تو پھر قرآن کے اندر میں کہا لا تقدموا بین، تو لا تقدموا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ لا تقدموا لا تتقدموا کے معنی میں۔ بہرحال فتحہ اور کسرہ دونوں پڑھا جا سکتا ہے، مقدمہ اور مقدمہ، لیکن علامہ محمد تمیم نے کہا ہے کہ دونوں تو صحیح ہے لیکن کسرہ جو ہے زیادہ فصیح ہے۔ بہرحال چلیے، یہ مقدمے کے متعلق بات ہوئی۔ فی ما علا، علا جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے یہاں پہ عبارت آپ کو بتلائی گئی فی ما یجب علی قاری القرآن۔ معنوی اعتبار سے مقدمہ کتنی طرح کا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے۔ تو معنوی اعتبار سے مقدمے کی دو قسمیں ہیں، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم جس میں کسی مخصوص فن کے مبادیات اور موقوف علیہ اصولوں کا ذکر ہوتا ہے اسے مقدمۃ العلم کہا جاتا ہے، اور مقدمۃ الکتاب جس میں کسی کتاب کے وہ ابتدائی مسائل مراد ہوتے ہیں جو اس کتاب کی افہام و تفہیم میں موقوف علیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اگر معنوی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پر مقدمۃ العلم ہی مراد ہے، کیونکہ ان یعلم سے اسی علم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور اس سے مراد ہے مقدمۃ القراءات، یعنی جو مسائل اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں ان کی حیثیت علم قراءت کے لیے مقدمہ اور موقوف علیہ کی ہے۔ علم قراءت آپ جانتے ہیں، علم قراءت وہ علم ہے جس میں کلمات قرآنیہ کے مختلف طریقے سے پڑھنے کے متعلق بحث کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے علم قراءات۔ جو قراء سبعہ اور قراء عشرہ پڑھتے ہیں اور ان کی روایتیں ہیں اسی کو جو ہے علم قراءت کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو علم قراءت وہ علم ہے جس سے جو ہے قرآن کریم کے کلمات کی پڑھنے کا اختلاف معلوم ہوتا ہے، اسی کو علم قراءت کہتے ہیں۔ تو یہ علم قراءت، چونکہ علم قراءت میں قراء سبعہ اور قراء عشرہ کی قراءت ہوتی ہے، اور انہی میں سے جو ہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت ہے، اور اس کے راوی جو ہے امام حفص ہیں جو ہم لوگوں کے مقتدا ہیں، اور ہم انہی کی روایت میں بلکہ اکثر دنیا کے اندر جو اکثر حصوں میں جو ہے انہی کی قراءت پڑھی جاتی ہے۔ چنانچہ صاحب خلاصہ نے یہی کہا تھا کہ میں نے اپنی یہ کتاب خلاصۃ البیان امام عاصم کی قراءت امام حفص کی روایت کے مطابق لکھا ہے، کیونکہ اذ هو المشہور فی اکثر البلاد، کیونکہ یہی جو ہے زیادہ دنیا کے زیادہ حصوں میں یہی مشہور ہے، یعنی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت ہی روایت ہی جو ہے پڑھی جاتی ہے، تو ہم لوگ بھی اسی میں سے ہیں، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پڑھتے ہیں۔ تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، امام عاصم کی قراءت، یہ بھی جو ہے علم قراءت کا ایک جز ہے۔ تو یہاں پر مقدمہ سے مراد جو ہے علم قراءت ہے، یعنی مقدمہ علم ہے اور اس سے مراد علم القراءت ہے۔ بہرحال
मुसन्निफ़ ने फरमाया वबाद इन हादिही मुक़द्दिमा, और हम्द व सलात के बाद तो बेशक ये एक इब्तिदाई रिसाला है, फ़ीमा उन चीज़ों के बयान में, यजिबु अला क़ारिल कुरान जिसका जानना क़ारी कुरान पर ज़रूरी है। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उन चीज़ों के बयान में कि क़ारी कुरान पर ज़रूरी है अन यअलम कि उसे जान ले। उसका जो है अच्छा सा तर्जुमा ये किया जाएगा कि उन चीज़ों के बयान में जिनका जानना क़ारी कुरान पर ज़रूरी है। अब सवाल ये होगा कि क्यों ज़रूरी है, उसका जवाब दे रहे इज़ वाजिबुन अलैहिमु मुहत्तमु क़ब्ल शुरू'i अव्वलन अन यअलमु, क्योंकि क़ारी कुरान पर लाजिम और ज़रूरी है कि वो शुरू करने से पहले इब्तिदाही में जान लें। क्योंकि क़ारी कुरान पर लाजिम और ज़रूरी है कि शुरू करने से पहले ही इब्तिदाही में जान लें। क्या जान लें? मखारिजल हुरूफ़ वस्सिफ़ाती लियल्फ़िज़ू बिअफ़सहिल लुग़ाती, हुरूफ़ के मखारिज और सिफ़ात, हुरूफ़ के मखारिज और सिफ़ात को, लियल्फ़िज़ू बिअफ़सहिल लुग़ाती ताकि वो फसीह तरीन ज़ुबान में अदा कर सकें। तो इस शेर में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इज़ वाजिबुन से जो वबाद इन हादी से जो फ़ीमा अला क़ारिही से जो उजूब मफ़हूम हो रहा था उसी की इल्लत बयान कर रहे हैं कि इज़ वाजिबुन, वो वाजिब क्यों है। इसीलिए इज़ में जो है, इज़ वाजिबुन में इज़ जो है तालीलिया है, जो उजूब मज़कूर की इल्लत बयान करने के लिए लिखा गया है, लाया गया है। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ वाजिब से मुराद क्या है, वाजिब शरई मुराद है या वाजिब उर्फ़ी और इस्तिलाही मुराद है। नीज़ ये कि इन दोनों में बेहतर क्या है। तो जवाब ये है कि यहाँ पर वाजिब उर्फ़ी और इस्तिलाही मुराद है, क्योंकि ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है कि नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह ने अन यअलमू के ज़िम्न में 3 बातें ज़िक्र की हैं। क्या 3 बातें हैं? मखारिजल हुरूफ़ी वस्सिफ़ाती, तजवीद यानी हुरूफ के मखारिज और सिफ़ात को जानना, यानी तजवीद में महारत होगी। लियल्फ़िज़ू बिअफ़सहिल लुग़ाती, तो इसके ज़िम्न में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने 3 चीज़ें ज़िक्र की हैं। मुहर्रिरित तजवीद वल मवाक़िफ़ी व मल्लज़ी रुस्सिम फ़िल मसाहिफ़ी मिन कुल्लि मक़तूइन व मौसूलिन बिहा व ता'i उन्सा लम तकुन तुक्तब बिहा। 3 बातें ज़िक्र की मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ज़िम्न अन यअलमू के ज़िम्न में। क्या क्या जानना है उसे? तजवीद में महारत, वक़्फ़ इब्तिदा में कमाल, और कलमे मक़तू व मौसूल और ताए तानीस से वाक़िफ़ियत। और ज़ाहिर सी बात है कि हर मुकल्लफ़ इसका मुकल्लफ़ नहीं है, यानी हर मुकल्लफ़ के बस की बात नहीं है कि इन तीनों चीज़ों को तजवीद में महारत हासिल करे, वक़्फ़ इब्तिदा में कमाल हासिल करे, कलमे मक़तू और मौसूल, और इसी तरह से ताए तानीस, कहाँ लंबी ता से लिखी गई है, कहाँ जो है ताए मुदव्वरा लिखी गई है। ये जो है इन तीनों चीज़ों में महारत, ये जो है हर एक के बस की बात नहीं है। हाँ, हर एक के बस की बात इतनी सिर्फ है कि मखारिजल हुरूफ़ी व सिफ़ाती, मखारिज हुरूफ और सिफ़ात हुरूफ को हर आदमी जान सकता है, और हर एक को जानना वाजिब भी है, ताकि वो जो है कुरान को जैसे नाजिल हुआ है उसके मुताबिक वो पढ़ सके। बहरहाल तो वाजिब से मुराद यहाँ पर वाजिब उर्फ़ी लिया जाए तो बहुत बेहतर है। चलिए इसी के ज़िम्न में हम देखते हैं कि वाजिब उर्फ़ी और वाजिब शरई में फ़र्क क्या है। तो वाजिब शरई और इस्तिलाही की तारीफ़ आप समझ लें कि वाजिब शरई कहते हैं मा युसाबु अला फ़िअलिही व युआक़बु अला तर्किही, यानी जिसके करने पर सवाब और न करने पर इक़ाब और सज़ा हो। और वाजिब उर्फ़ी और इस्तिलाही कहते हैं मा ला बुद्द मिन्हु फ़ी फ़िअलिही वला युस्तहसनु तर्कुहु, जिसका करना बएअतिबार इस्तिलाह फ़न ज़रूरी हो और उसका छोड़ना अच्छा न हो। बस इतनी बात आप जहन में रखिए। फिर कल जो है इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर आपको तफसील से बतलाया जाएगा कि यहाँ पर
वाजिब उर्फ़ी तो हमने मुराद ले लिया, तो क्या वाजिब उर्फ़ी और वाजिब शरई दोनों एक साथ मुराद लिया जा सकता है या नहीं, और वाजिब उर्फ़ी मुराद लेने में क्या सहूलत है और क्या हिकमत हो सकती है, और वाजिब क्या कहते हैं शरई मुराद लेने में उसकी तायीन कैसे की जाएगी और किस हद तक उसके जो है माना जाएगा कि वाजिब शरई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।